Hello, friends. A very warm welcome to this session. And again, we're going to pick up very important themes and ideas which are going to help you in both prelims and the mains examination. Now, again, the issue had been going on with respect to US tariffs. So, trade ideas must be positive, trade ideas must be bilateral, trade ideas must be, open, transparent, and must follow WTO norms. But here, what we see unjustified and unfair. Why? Because we cannot allow our farmers and our small enterprises to finish off by the US imports. At the same time, India suspends most postal services. Why? Because we are not sure that what should be put the value of the same. Another example is of how our ambassador or a key person plays a role with respect to uh, appointment of a White House aide as envoy to India with a regional role. He is just 38 years old. And these ideas play a very, very important role. Sergio Gore is a key member of the White House team. Moving forward, again, US tariff cannot be justified. You must have read on your own also. The point is that India, if it is imposed with 50% tariff, while 25% tariff has already come into effect, the levy of another 25% is supposed to be a penalty because of the energy imports from Russia. So, is it going to stabilize world's energy market? Is it going to help the whole world oil price scenario? Is India the biggest purchaser of the Russian oil or LNG? Then why? Why it is being done with India? Europe is not buying LNG from Russia? And even are there no relations between Russia and US? The overall Russia EU trade is bigger than Russia India trade. Then they are bigger buyers. If the argument is who is trading more, then there are bigger traders. India's export to Russia have grown, but not that much. So that is how we have to understand. We have to write these ideas in our mains examination also, because the question will be not coming on this tariff. Question will be a bigger idea. Negotiations to start soon on GE engine. रट लीजिए GE engine, that is General Electric Aerospace engine for Tejas MK2 jets. तो डिफेंस इंडियनाइजेशन की बात है, कॉम्बैट जेट इंजन बनाने की बात है. ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर अगर HAL को बनना है तो HAL GE पैक्ट जो है इस दिशा में बहुत मदद करने वाला है. एंड फ्रेंच मेजर सैफरान is joining hand with Bangalore-based gas turbine research establishment to manufacture an advanced jet engine in India, which will power India's indigenous fifth generation advanced medium combat aircraft (AMCA). So that is how you have to mug up. You have to remember this. Prelims के लिए याद कीजिए, mains में लिखिए. So very important. So GE Aerospace will be transferring 80% of the engine technology, and negotiations have been going on since 2012. So the transfer of certain key components and also technology including compressor, combustion chamber, turbine, ये बहुत important है. So GE Aerospace is a very, very important provider of these, enabling India to do so. आप यहाँ से कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में नोट कीजिए. एनर्जी ट्रांसफर है, स्पेशल कोटिंग फॉर कोरोजन इरोजन, थर्मल बैरियर फॉर हॉट एंड मशीनिंग, कोटिंग फॉर सिंगल क्रिस्टल फॉर टर्बाइन ब्लेड्स मशीनिंग, कोटिंग ऑफ नोजल गाइड वैन्स एंड सो फोर्थ. तो ये बहुत ही महीन टेक्निकल और बहुत ही निटिग्रिटी वाली चीजें हैं. तो दैट इज वाई इट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया की जब बात आती है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, देन दीज पॉइंट्स बिकम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 25 से 30 शब्दों में इनको लाना होगा. 53 ग्लोरियस इयर्स ऑफ सर्विस टू द इंडियन सी फूड सेक्टर. तो इसके लिए बॉडी कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है. द मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री.
बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो श्रिम्प हो, चाहे फिर वो फिशिंग बात हो, लॉबस्टर हो, चाहे फिर वो बाकी चीजों की बात हो, हमें इस पर एक शॉर्ट नोट चाहिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ कुंज. सो इट इज अ स्पेस फॉर आर्टिजन्स. कुंज क्या है? A new retail and cultural complex that has come up at Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Now, Kunj is the name, and you can here enjoy, चाहे फिर वो राजस्थान के दिए हो, चाहे फिर वो कारीगर करते हुए काम हो, चाहे जोधपुर की मोजड़ी हो, चाहे कलामकारी वुड ब्लॉक्स हो, चाहे जोधपुर शिल्पी गुरु जो ऑनर करने की बात है, द साउंड ऑफ हैमर. सो फॉर चिल्ड्रन, एंड इनफैक्ट जब आप हेरिटेज पे क्वेश्चन लिखते हैं मेंस में, तब आप यहाँ पर आराम से यहाँ का वैल्यू कर सकते हैं, आप एक आइडिया ले सकते हैं, और हैंड क्राफ्टेड गार्डन का आइडिया भी आप लिख सकते हैं. What is the policy of government of India when it comes to exports? So India wants to become more self-reliant. India is going to become the third largest globally powerful country. Macroeconomic stability भी है. So we have to write in the mains, अगर आप डेटा नोट करेंगे कि India's automobile export were 50,000 crore, now they are at 1.2 lakh crore. That means more than double. We are exporting metro coaches, locomotives, and also we are exporting even electric vehicles. So this is very very important. तो ये डेटा हो गया आपका. इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़. एंड आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला 35,000 करोड़. So agriculture exports reached 4 lakh crore last year. Electronic exports, which in 65 years since independence had reached 35,000 crore since independence, मैंने कहा वो अब है 3.5 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़. तो ये फिगर है कुछ जिनका हमें अंदाजा होना चाहिए. और बहुत अच्छा पॉइंट जो आपको मेंस में लिखना है कि रिफॉर्म्स आर नीदर ए कंपल्शन और ए क्राइसिस ड्रिवन, दे आर मैटर ऑफ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन. जीएसटी रिफॉर्म की जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की, और जो है एक स्पेस स्टार्टअप था 2014 में, अब हमारे पास 300 स्टार्टअप है. तो ये कुछ मैंने जो बातें कही, ये आपके पास बिल्कुल आपके राइटिंग में होनी चाहिए. सिमिलरली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है, वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक 53% एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है, गौतम बुद्ध नगर अगर उसके लिए लीड करता है, और वाराणसी में हैंडीक्राफ्ट की बात है, लखनऊ में बोनलेस मीट और टर्बाइन फ्यूल और स्टेनलेस स्टील की बात है जिसमें 1800 करोड़ तक की बात है. गोरखपुर सैनिटरी प्रोडक्ट्स, मस्टर्ड सीड्स, ऑयल केक यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री की आप बात कर सकते हैं. आगरा लेदर शूज, बूट्स एंड गुड्स. बाराबंकी प्राइमरी राइस, मेंथॉल एंड पेपरमेंट प्रोडक्ट्स. तो ये हर जो मैंने सारे बोल रहा हूँ, भदोही है, बुलंदशहर है, बहराइच है, पोटैटोज, राइस, शुगर, चिकपीस. तो ये हमें लिखने पड़ेंगे, हमें याद रखने पड़ेंगे. और उसके बाद आपको जो यहाँ पर एक फिगर दी गई है कि कैसे इंडिया का 39% कारपेट है, कैसे इंडिया का 44% हैंडीक्राफ्ट है, कैसे इंडिया का 26% लेदर गुड्स है, कैसे इंडिया का 4.73% जो है वो टोटल एक्सपोर्ट्स का भागीदार यूपी है. तो ये पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे, आप इसको नोट करिए. ऐसे ही आपको स्पेशल यूथ एंड स्टार्टअप लोन स्कीम का पॉइंट डालना पड़ेगा, और आपको यूपी की जो ग्लोबल पोटेंशियल है उसके लिए यदि कोई कैनवेसिंग हो रही है, उसके लिए यदि कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके लिए यदि कोई कैंपेनिंग है, तो उसको डालना पड़ेगा. उत्तराखंड इज गोइंग टू एक्सपोर्ट किंग रोथ एप्पल वैरायटी यूएई. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जीआई टैगिंग जो है एपिडा ने मदद की उसके लिए. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिकॉग्निशन है, ट्रेसेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, ज्यादा रिजिलियंट है, ज्यादा समय चल सकते हैं, और फार्मर्स को प्रोड्यूस के पैसे भी मिलेंगे, और ग्लोबल मार्केट भी ओपन होगा. तो ये सारे आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए जब ये एप्पल यूएई पहुंचेंगे, तो ये जो है यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप उनके साथ टक्कर लेंगे. ओल्ड वैरायटी जो है वो, मतलब आप कह सकते हैं जो रोता है, रॉथ एप्पल, ही अपने आप में आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है. तो चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, उसके बाद स्किल्स की जहां तक बात है, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल की तरफ जाना है, तो उन मौकों में आप इसको बहुत पॉजिटिवली आप देख सकते हो.
बंगाली रिवोल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस में वुमेन का रोल सिर्फ मार्जिनल या सिर्फ सेंटर नहीं, एपिटोम पे था बहुत जगह। तो उन्होंने बैटल लड़ी बहुत जगह, कॉलोनियल डोमिनेशन से बैटल लड़ेंगे, सोशल कंस्ट्रेंट से भी बैटल लड़ेंगे, पर्दा भी रखेंगे लेकिन मॉडर्न भी होंगे। अपर कास्ट वुमेन जो है वो घर से बाहर निकलने में डरती थी, उन्हें निकलने नहीं दिया जाता था। सूर्य सेन, उन्होंने जो है वुमेन लीडरशिप और सेक्रीफाइस को एक सिरे से आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, प्रीतिलता वाडेडार, डियरिंग असॉल्ट ऑन यूरोपियन क्लब एट चट्टागोंग इन 1932, जहाँ पे रेशियल सेग्रीगेशन था, और शी रिफ्यूजिंग टू कैप्चर शी कंज्यूम साइनाइड एंड एम्ब्रेस्ड मैथ्रिडum, लीफलेट छोड़ दिए, लेटर छोड़ दिए, और वुमेन को ये बोला कि वो बैकग्राउंड में ना रहे। सिमिलरली कल्पना दत्ता, चिट्टागांग आर्मरी रेड, और बाद में अपना एक्सपीरियंस भी उन्होंने क्रॉनिकल किया। और यहाँ जो कीवर्ड लिखा हुआ है, देवर इक्वल टैक्टिशियंस एंड पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। बीना दास, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था गवर्नर को असैसिनेट करने के लिए स्टैनली जैक्सन ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन 1932, एंड एक कैलकुलेटेड प्रोटेस्ट था, और पहले भी उन्होंने खादी पहनी थी और बैन लिटरेचर को उन्होंने प्रमोट किया था। सो ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जनरल आइडिया नहीं है, ये एक जुनून है। सिमिलरली बेगम रोकया शकावत हुसैन, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है, उनका नॉवल था सुल्तानाज ड्रीम, जिनमें एक सोसाइटी थी जहां पर वुमेन लीड करेंगी, रीजन होगा पीस होगा, कॉलोनियलिज्म नहीं होगा, पैट्रियार्की नहीं होगा। कमला दास गुप्ता, डेली डोमेस्टिसिटी विद सीक्रेट डिफेंस, एक वुमेन हॉस्टल को मैनेज करते हुए उन्होंने एक कुरियर की तरह काम किया अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स के लिए, और लॉजिस्टिक्स को उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। रखते राक्षरे, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा नाम, और उन्होंने राखी भी टाइट की जब बंगाल डिवीजन की बात आती है उसके अगेंस्ट। सिमिलरली नयना बाला देवी, ए विडोड ब्राह्मण, डिफाइड कास्ट जेंडर एक्सपेक्टेशंस बाय posing as मदर वाइफ एंड सर्वेंट, अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड इन पेशावर, और उन्होंने फिर भी जबान नहीं खोली, मुंह नहीं खोला। लावण्या प्रभा घोष, रीडिंग ग्रुप्स बनाए, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस को प्रमोट किया लाइक मुक्ति, और घर में जो अंडरग्राउंड मीटिंग्स हुई, और लिटरेसी उनके लिए वेपन था। तो आज आपके लिए भी वेपन है सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालने के लिए। सिमिलरली मातंगनी हजरा, जिनको गांधी बुरी भी कहा जाता है, पॉपुलर रेजिस्टेंस, इलिटरेट वुमन फ्रॉम तामलुक, प्रोसेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, मल्टीपल टाइम गोलियां चली लेकिन वंदे मातरम बोलना बंद नहीं हुआ। तो पाथार दाबी, ये जो पाथेर दाबी जो है वो आप कह सकते हैं स्टोरीज हैं, ये एक पावरफुल कंटिन्यूम है जो कि मेल सेंट्रिक नैरेटिव को अलग से अलग करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वुमेन जो है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं थी। वेन्स में क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार आ रहा है और आता रहेगा, तो आपको इस पर्सपेक्टिव से इसको समझना होगा, उसके बिना बात समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि आप जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आप जो है पूरे पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं कर पाएंगे। अब मानसून के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन अर्बनाइजेशन की जब बात होती है तो साइंस बिहाइंड रोड लेइंग, ड्रेन कंस्ट्रक्शन, तो ये एक आपका एक लाइन हो सकती है। यानी कि एक ड्रेनेज डिच है एक साइड में, एक पीछे बैक स्लोप है, एक रोडवे बना दिया आपने, एक क्रॉस स्लोप बना दिया, एक हिंज पॉइंट बना दिया। क्लियर जोन दोनों साइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो होना क्या चाहिए, रोड सरफेस ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड अप्रेंटिसेस, सब सरफेस ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ स्पेशल लोकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रेनेज थ्रू पंपिंग। तो अर्बन ड्रेनेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर इनटू ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रीट लेवल ड्रेन्स। तो इतना क्या फोकस आप मेंस के आंसर में कर पाते हैं? क्वेश्चन ये है कि आप कर पाएंगे? अभी आपसे मैं बोलूं कि आप इस पर बोलिए तो आप एक लाइन से ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the storm water getting into ground starting from street level drains continuing through primary, tertiary and secondary, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ड्रेन्स। तो यानी कि आप रीडिजाइन कीजिए एग्जिस्टिंग ड्रेनेज क्रॉस सेक्शन को, यानी आप थोड़ा उस पर सैंड लगाएंगे, ग्रेवल लगाएंगे, प्लास्टिक जियो टेक्सटाइल लगाएंगे, और आप जो है फिल्टर बेड्स तैयार करेंगे। तो ये शब्द हमारे आंसर में आने चाहिए। फिर से मेरा आपको वार्निंग है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन इनलेट्स जो है उसमें पानी इकट्ठा होगा रन ऑफ की तरह, और रन ऑफ चला जाएगा, और उसके बाद जो है पूरे के पूरे सिस्टम का एक पार्ट बन जाएगा। इसीलिए रेन वाटर ऑन फ्लाईओवर शुड बी ड्रेन थ्रू एन एफिशिएंट पाइपिंग नेटवर्क, जैसे मेट्रो करती है,
या फिर वैली कब एरियाज। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे वर्ड आप, लेकिन आपको जब तक फंक्शनैलिटी समझ नहीं आएगी, तो की स्ट्रक्चर जब तक आपको समझ नहीं आएंगे जो अवॉइड करने हैं, तब तक आप कह सकते हैं कि हमारी अर्बन प्लानिंग फेल हो जाएगी। जैसा कि हमने कहा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसका हमने पहले भी पढ़ा था, तो अब हम इसको कवर कर चुके हैं। सेंसस 2027 टू रिटेन अर्बन एरिया डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस काउंट, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस 2011 है, other than statutory areas such as municipal corporation, cantonment board, notified town area committee, town panchayat, nagar palika, an urban unit or a census was defined as all other villages with a minimum population of 5,000 people with the density population of 400 persons per square kilometer, where 75% of the male ही है यहाँ पर, मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट्स। तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। And out of the total population of 121 crores, around 83 crore Indians live in rural areas, while 37% reside in urban areas. It's very, very important to understand this and the significance of such development. So, अगर आप पर्पस की बात भी करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्बन यूनिट्स बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक क्राइटेरिया, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे डेमोग्राफिक क्राइटेरिया के हिसाब से पॉपुलेशन साइज, प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स, प्रीवियस सेंसस, ऑल विलेजेस having a population of more than 4,000 or more preceding 2011 required to be taken up for examination, because the village having a population of 4,000 or more in census 2011 expected to cross the population mark of 5,000, तो जो 4,000 था पहले वो 5,000 हो जाएगा। So this is how you have to understand, वेरी इंपॉर्टेंट है सारी एक्सरसाइज। तो अगले साल मेंस में इसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज को भी आप कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नेवर सेड दैट स्टेट शुड नॉट फाइट नक्सल्स, ये व्यू पॉइंट दिया ऑपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने। और उन्होंने कहा कि सलवा जुदूम का जो वर्डिक्ट था उसमें द स्टेट कैन नॉट आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पीपल। तो इसीलिए अपने आप में एक विवाद उठा कि सलवा जुदूम, यदि सरकार की पूरी जिम्मेदारी अगर एक प्राइवेट फोर्स ही ले लेगी या लोग खुद ही ले लेंगे, तो सरकार क्या करेगी। तो इस एंगल से उसको कहा गया था। एंड ये एंगल नहीं था कि सरकार किसी भी कॉस्ट के ऊपर आगे कदम नहीं उठाएगी। तो ये जो रूलिंग आई थी बहुत इंपॉर्टेंट है रूलिंग। एंड जुलाई 2011 जो जजमेंट है वो यही था कि अगर सलवा जुदूम को आप बनने की आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो डोंट यू थिंक इट इज द एब्डिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी टू सिटीजंस by having an appropriately trained professional police force of sufficient numbers and properly equipped on permanent basis। तो स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है टू यूज वायलेंस। स्टेट ही जो है यूज कर सकता है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट यूज वायलेंस अगेंस्ट एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सो ये इस बात को रखते हुए जस्टिस रेड्डी ने एक बात कही। और बात ये नहीं है कि हिज ऑर्डर्स वर प्रो और एंटी यूएस एंटी यूपीए गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है। आप इस पर्सपेक्टिव से इसको देखिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आप आखिर बेचेंगे कैसे, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आखिर आपके होंगे कैसे जब $100 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट आपका है, तो सिर्फ चाइना के साथ है। आपको नए मार्केट देखने हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप बोलोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज इसमें लेके आने पड़ेंगे। जैसे विकसित भारत के लिए जो एक पर्सपेक्टिव चाहिए, जो एक अप्रोच चाहिए, उसके अंदर मल्टी स्टेक होल्डिंग है। और उसके अंदर चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिर वो हेल्थ सर्विसेज हो, और चाहे फिर वो एजुकेशन हो, एवरीथिंग हैज गॉट a very very proper place apart from manufacturing services and even the role of AI। अब अगर निकोबार आइलैंड को बोलते हो आप कि उसको बुलडोज किया जा रहा है, जल्दी जल्दी किया जा रहा है, 72,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि वो आपको हर विवादित विषय को सोचने को या देखने का मौका देती है। क्वेश्चन भी आता है मेंस के अंदर, वो चाहे प्रेशर ग्रुप पे आए चाहे सिविल सोसाइटी पे आए। और जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल है द ट्राइबल काउंसिल इन निकोबार आइलैंड्स
कंप्लेनिंग टू द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसको यू नो माना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन लोगों को दिक्कत है। द ट्राइब्स पीपल्स राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट हैज बीन वायलेटेड, जबकि सरकार का कहना है दे हैव नॉट बीन वायलेटेड, दे आर इनफैक्ट गिवन द ड्यू स्पेस। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है, उसमें पेपर वन के अंदर सोसाइटी के क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ में एसए और एथिक्स की बात भी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हो कि आईसीएमआर का हेल्ड डिवाइस टू स्कैन ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल है और रेडिएशन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए, इन्फेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैंडल्ड मशीन नेम्ड क्रीबो डेवलप्ड यूजिंग एडवांस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी। अब स्पेक्ट्रो स्कोपी टेक्नोलॉजी पर हमने लेक्चर भी रेडी किया है। तो ये आपको देखना है कि एक जो टेक्नोलॉजी है या एक जो सिस्टम है उसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आईसीएमआर ने इसको किया, तो एम प्राइड स्कीम के अंदर इसको किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं कि इंडिया हैज द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ हेड इंजरीज इन द वर्ल्ड। 1 लाख लोग हर साल जो है सर की चोट से मर जाते हैं। दो हाफ ऑफ दोज हु डाई डू सो विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ इंजरी। तो यानी कि क्या पोर्शन डैमेज हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज क्या हुआ है इम्पैक्ट की वजह से, और डैमेज जो है वो प्रोग्रेस होता चला जाता है मिनटों में और घंटों में। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी कैन रिजल्ट इन इंक्रीज मोर्टालिटी एंड डिसेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंटली अर्ली एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉक स्कॉलिंग टाइम ऑन नाविक बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से वही बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इसरो का रोल। इंडियन जीपीएस सिस्टम है, एक की एलिमेंट जो इसमें है वो है इंडिजिनस क्लॉक्स का, अगर हमारे खुद के होंगे। हाई प्रिसीजन क्लॉक्स, 5 फॉर एवरी सैटेलाइट्स, एक्यूरेट टाइमिंग देते हैं, इसी से हमें लोकेशन पता लगती है। इसके बिना हमें, एटॉमिक क्लॉक्स के बिना हमें लोकेशन पता नहीं चल सकती, इतना एक्यूरेसी चाहिए। एंड मिलिट्री और स्लाइटली लेस एक्यूरेट फॉर सिविलियन पर्पसेस। सो 9 सैटेलाइट जो है आईआरएनएसएस की, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक कहा गया, तो आपको पीटी के लिए याद होना चाहिए कि 2013 में लॉन्च हुआ। 8 जो है अपने इंटेंडेड ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। लास्ट सैटेलाइट 2018 में लॉन्च हुई थी। एंड कॉन्स्टलेशन ये ऐसा ही जैसे हमारा ग्लोनास है, ये चाइना का बैदू है, अमेरिका का जीपीएस है, यूरोपियन का गैलीलियो है। तो नाविक इज एक्सपेक्टेड टू डू सो ओनली विद इन द रेडियस 1500 किलोमीटर इन इंडिया। ये फॉलबैक सिस्टम है अगर इंडिया को कोई एक्सेस देने से मना करता है। लेकिन इसरो ने जो है पूरी कोशिश की है कि हमें पूरी तत्परता के साथ हमें लेवल मिले और हम ऐसा कर सकें। जो 2 सैटेलाइट्स हैं आप कह सकते हैं वो फंक्शनल है एटॉमिक क्लॉक के साथ, और एटॉमिक क्लॉक्स जो है इंपोर्ट किए हैं उन्होंने। अब हम चाहते हैं कि हम जो है उसको इंडिजिनस तरीके से करें। तो ये भी आप मेंस के अंदर, ना सिर्फ मेंस के अंदर आप कह सकते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 3 के एग्जाम्पल में आएगा ये, बल्कि हमें कहना चाहिए कि ये एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की जिसको आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी लेके आ सकते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या हम इस हद तक क्या हम पहुंच पाते हैं कि हम वाकई आंसर्स तक लेके आ पाए। अब जैसे जो न्यू गेमिंग बैन हमने किया, वो हमने लॉ के द्वारा कर दिया, प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दी। अब क्या क्वेश्चन उठता है, अब क्या, क्या वाकई कंपनियां शांत बैठ जाएंगी। कंपनियां क्लेम कर रही थी दे विल नॉट बी लेइंग ऑफ पीपल, उन्होंने पीपल को ले ऑफ भी कर दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि क्या और कोई सबवर्टेड तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से या फिर आपका प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क्स या कोई और टेक्नोलॉजी या डीप फेक के थ्रू क्या ये चीजें चालू नहीं रहेंगी। इसीलिए हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है सर्ट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकल इश्यूज को हैंडल करने के लिए, जिस पे हमने पहले भी चर्चा की है। उन्होंने इंटरपोल के साथ जो है एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग किया, और जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे मजबूत करके जो हमारे सर्ट इन, जिसको आप कह सकते हो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, लेकिन अब जो आएंगे वो फ्यूचरिस्टिक आएंगे। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला, जैसा मैंने कहा कि वीपीएन या कुछ भी हो हमें पता लग जाएगा, हम टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन
बात उठता है एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी, सोसाइटी के क्वेश्चन से भी, कि क्या किसी और तरीके से आप कर पाओगे? जैसे अगला जो हमने जो आर्टिकल लिया उसमें है इन ऐप बाइज जो है वो एक अल्टरनेटिव है कैश काउ सेक्टर के लिए। अब ब्लैंकेट बैन आपने कर तो दिया, अब क्या है, इन रियल मनी गेमिंग यूजर्स पे एंट्री फी टू विन कैश रिवॉर्ड्स। इन कैजुअल गेमिंग आप क्या करोगे, इन इन ऐप परचेजेस कर लोगे, एडवर्टाइजिंग कर लोगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आर यूज फॉर मोनेटाइजेशन। सो इन ऐप परचेजेस भी जो है 41% तक बढ़ चुके हैं। सो इन ऐप परचेजेस में एडवर्टीजमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो वही बात है कि आप रोकोगे कैसे? सो अभी क्या है, अभी तो जो नॉन रियल मनी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें रियल मनी नहीं लगता, दे आर फ्री टू प्ले टाइटल्स। वो जैसे अब लेकिन अब यूजर्स को जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंटरैक्टिव मीडिया और गेमिंग जो फर्म्स हैं वो अब इस तरीके से कमाना चाहेंगे, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? तो पॉइंट यही है कि कैसे आप समाज की पूरी सोच को बदलोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंस एंड टेक की अमोनिया पावर्ड सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, कैसे पूरा का पूरा आपको इसकी फंक्शनिंग आनी चाहिए। 2 मिनट के अंदर आपको इसको बताना है। फ्यूल सेल, और क्या किया उन्होंने, एक फ्यूल सेल को और प्लाज्मा रिएक्टर को कंबाइन किया, दैट ब्रोक अप अमोनिया इनटू हाइड्रोजन एंड न्यूट्रोजन बिफोर इट रीच द सेल। इससे 60% एनर्जी बढ़ गई और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हुआ। द प्लाज्मा प्रोसेस वाज फाउंड टू वर्क क्विकली एट रूम टेम्परेचर्स एंड कुड रिसाइकल वेस्ट हीट। इसलिए प्रैक्टिकल वे आया यूज करने का अमोनिया का। अब अमोनिया को स्टोर करना हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत आसान है। सो अगर हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते तो हम थ्रू अमोनिया यूज करने की बात है। तो अमोनिया पावर्ड सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया पावर्ड, क्योंकि अमोनिया का आपने ब्रेक किया इनटू हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और उसके बाद आपने जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपने की। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात अगेन, टबैको कंट्रोल लॉज आर आउट ऑफ स्टेप विद स्मोकलेस टबैको। अब स्मोकलेस टबैको इज पुअरली टैक्स्ड। क्या है स्मोकलेस टबैको? अब टबैको यूजर्स तो आप, मैंने माना कि वो हेल्थ है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, बर्डन है, और जो हमारा सीओटीपी एक्ट है 2003 का, उसको हमने पुअरली इन्फ्लुएंस किया है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है? सदाबहार और विमल बहार और पता नहीं क्या क्या, यंगर लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। बीड़ी के ऊपर कम टैक्स है, अफोर्डेबल रखेंगे जब तक तब तक ये होता रहेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव टोबैको कंट्रोल स्ट्रैटेजी चाहिए, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स भी वो और होनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा सीओटीपी जो मैंने कहा, दैट इज सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, स्ट्रिंजेंट तो है लेकिन उसका एप्लीकेशन पुअर है। स्मोकलेस टोबैको एफएसएसएआई ने रेगुलेशन किए हैं लेकिन वो वीक है, पुअरली इन्फोर्स्ड है। सो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो गए, लेस स्टिग्मा भी है। स्मोकलेस टोबैको इज मोर कॉमनली कंज्यूम फॉर्म ऑफ टोबैको इन इंडिया। एडिक्टिव जो पोटेंशियल है एसएलटी का इज नॉट ओनली वेरिएबल, लेकिन ज़्यादा कार्सिनोजेनिक भी है। इसीलिए जो है वो हम हैंडल नहीं कर पाते। आपके जब ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर सोशल मीडिया से लेकर साइंस है मैंडेटरी, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिखा नहीं पाते। और सिंगल सिगरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं है सीओटी में, फिजिकल मेजर्स टू कर्ब टोबैको यूज। अगर आप एक्साइज टैक्सेस को रेज कर देते हैं तो कंजम्पशन पे फर्क आ सकता है, लेकिन वो और ज्यादा होना चाहिए। तो बीडी द मोस्ट कंज्यूम्ड एंड स्मोक प्रोडक्ट इज जस्ट 22%, और 50% है सिगरेट के ऊपर, जबकि डब्ल्यूएचओ ने बोला 75% होना चाहिए। तो स्मोकलेस टोबैको पुअरली टैक्स भी है, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में है। तो किसी भी तरीके से आप खा रहे हो टोबैको को, और वार्निंग्स हैं लेकिन वो इवेलुएट नहीं की जाती। ओरल कैंसर के केसेस बताए जाने चाहिए। और आप कह सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स को इम्पैक्ट आता है। इंडिया तो बहुत ही फ्यू कंट्रीज में से है जिसने ई सिगरेट को ही बैन कर दिया, लेकिन वही पुअर इम्प्लीमेंटेशन। तो सीओटीपी हमने जाना, उसके बाद हमने स्मोकलेस टोबैको के कॉन्सेप्ट को जाना, फिर हमने जो है डायरेक्ट प्रोविजन जाने की कोई फिजिकल कंट्रोल के लिए नहीं है, और उसके बाद सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी एक इशू है। तो ये 4-5 इशू भी अगर आप 10 वर्ड्स में लिख के आते हैं तो आप और हमारा भला हो सकता है।
Why does African Union wants that Mercator map replaced? Is the continent depicted smaller than it is? और इसका परसेप्शन कैसे हुआ और व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू करेक्ट द डिस्टॉर्शन? सो अफ्रीकन यूनियन ने इंडोर्स किया करेक्ट द मैप कैंपेन को, जो कि मार्केटर मैप प्रोजेक्शन को हटाकर चाहते हैं कि जो जेन्युइन है, जो प्रॉपर है वो दिखाया जाए, इतना छोटा ना दिखाया जाए। तो मार्केटर प्रोजेक्शन जो है वो 1569 से जुड़ा हुआ है। फ्लेमिश कार्टोग्राफर मार्केटर के नाम पे है, जिन्होंने नेविगेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपास की तरह यूज किया और कांस्टेंट कंपास डायरेक्शन को दिखाया, रम्ब लाइंस उनको कहते हैं। तो इसीलिए आप एग्जैक्टली कैसे स्ट्रेच करेंगे नॉर्थ से साउथ स्केल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप सेलर्स ने तो डायरेक्ट लाइन खींची और कंपास के हिसाब से फॉलो किया और मैथमेटिकल टेबल्स भी क्रिएट हो गई, कॉलोनाइजेशन भी हो गया। मार्केटर ने स्केल को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया, तो यानी लैंड मास को थोड़ा सा उन्होंने पोल्स की अपीयर क्लोजर दिखाया और इक्वेटर के पास थोड़ा सा छोटा दिखाया, जितना अगर आप रियलिटी में भी देखोगे तो मतलब अगर आप देखते हैं तो इक्वेटर अपीयर्ड स्मॉलर देन इन रियलिटी, यानी कि थोड़ा डिस्टॉर्शन हो गया। तो इसीलिए अगर आप कहो कि अफ्रीका अगर 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो वो इतना दिखता है अफ्रीका जैसे आप ग्रीनलैंड को देख रहे हो, जो कि 14 टाइम स्मॉलर है उससे। यूरोप जो है वो ऐसा लगता है ध्यान से देखने पे अफ्रीका जितना है, अफ्रीका से थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम, कुछ भी कह लीजिए। कनाडा, रशिया, नॉर्थ यूरोप वो ब्लॉटेड दिखते हैं, जबकि ट्रॉपिकल रीजन जैसे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, वो तो बहुत छोटे दिखते हैं। तो इंडिया के लिए भी ये क्वेश्चन है। तो वॉल मैप में आ गया, एटलस में आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो मार्केटर का जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, इससे हम फेमिलियर थे, इससे सब कुछ रेनफोर्स हो गया। तो कोई परफेक्ट वे नहीं है, ये एक से सरफेस भी फ्लैट हो गया। और आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से सबके हाथ में है। ये एक टेक्निकल एक्ट भी है और पॉलिटिकल एक्ट भी है। आप याद कीजिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े समय पहले कह रहे थे कि भाई हम तो गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे, गल्फ ऑफ वी आर नॉट गोइंग टू कॉल इट गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए सारी चीजों को उस पर्सपेक्टिव से दिखाया जिस पर्सपेक्टिव से उनका बेनिफिट हो सकता था और लाइमलाइट में वो रह सकते थे। दिस हैज बीन नॉट जस्ट वंस, बट दिस हैज बीन डन नंबर ऑफ टाइम्स। तो यही क्वेश्चन उठता है कि हम इसका कैसे फाइट करें। आप इसको कैसे फाइट करोगे? ये अगर मैं बात करूं तो हमारे एग्जामिनेशन में एथिक्स के अंदर, एसए के अंदर, और आप जो है अगर ये भी याद रख पाते हैं कि मर्केटर मैप फॉल्सली पोर्ट्रेज अफ्रीका एज मार्जिनल, तो आप सोसाइटी के क्वेश्चन में भी इसको लेके आ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लैंड मासेस थोड़े कर्व्ड या स्ट्रेच दिखते हैं। उनका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो ऐसा दिखाता है, वो अर्थ को अर्थ ऐसा दिखाते हैं जैसे अर्थ आप स्पेस से देख रहे हैं। तो लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ा। ग्लोबल इमेजिनेशन क्या होगी, फर्क पड़ता है। पॉलिसी मेकिंग और पॉपुलर कल्चर में आप कैसे देखोगे? स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन एक पॉलिटिकल टूल हो गया, एक डोमिनेशन का हो गया। अफ्रीका को छोटा दिखाया गया, इररिलेवेंट दिखाया गया, कंकरिंग दिखाया गया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में तो है नहीं। तो अब क्या होगा? अब जो है जो लीडिंग अल्टरनेटिव है मार्केटर प्रोजेक्शन का, वो है इक्वेटर अर्थ प्रोजेक्शन, जो कि टॉम पैटरसन यूएस नेशनल पार्क सर्विस एंड बशान सवरेक विद अमेरिकन जीआईएस कंपनी इसरी, उन्होंने बनाया, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े। तो उन्होंने जो है शेप को वैसा दिखाया जैसा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने आप में एक बात है कि अजम्पशंस क्या दुनिया को सोच के आपने अज्यूम कर लिया आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपने अज्यूम कर लिया कि कोई आपको ब्रांड करके बता रहा है भाई कि हाँ ऐसे होता है, वैसे ही होता, तो वैसे नहीं होता। तो सेम इज द एग्जाम्पल ओवर हेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा। सो हाउ इज द जीएसटी स्ट्रक्चर बीइंग सिंप्लीफाइड? हमने पहले भी बात की है। 99% आइटम्स currently in the 12% slab will move to the 5% slab, and there will be another slab, जिसको आप कह सकते हो कि 40% स्लैब एक रह जाएगी, और जिसके अंदर आप सिन गुड्स या फिर बाकी गुड्स को लेके जाएंगे। तो यानी 28% वाले जो हैं वो 18% में भी आ सकते हैं, और जो बहुत सारे आइटम्स जो 28 स्लैब
परसेंट स्लैब में है, which sin goods and tobacco, cigarettes, online gaming, they may move to, even they will be moving to 40%. Even high end motorbikes, अगर उनकी आप बात करो तो बजाज है, बाकी हैं, वो बोल रहे हैं भाई नहीं 40 में मत लेके जाइए, उसको 18 में ही रखिए। तो दैट इज हाउ इट इज, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमन कंज्यूमर, बिकॉज बहुत सारी चीजों का जो रेट है वो एडिबल जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस अलॉन्ग विद लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड एप्रिल्स लेस देन 1000, वो जो 5% के ब्रैकेट में रहेंगे। और बहुत सारे जो 18% में जो टैक्सेस हैं, जैसे 100 टॉयलेटरीज हैं, उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। नॉन लग्जरी कार्स, एसीज एंड फ्रिजेस, करंटली दे आर 28%, सो आप कह सकते हो उसको भी बेनिफिट होगा। रेवेन्यू इंप्लीकेशंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वी आर डिस्कसिंग इट, कि कैसे 1.8 लाख करोड़ तक का फर्क आ सकता है, और हाफ इज टू बी बोर्न बाय द सेंटर एंड हाफ इज डिवाइडेड बाय द स्टेट। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जब डिविडेंड दिया, जैसे उसने 2.69 लाख करोड़ डिविडेंड दिया, तो आप कह सकते हैं कि एक साइकिल है, चर्निंग है, लॉस जो होगा वो कंपनसेट भी होगा, और आप कह सकते हैं कि हम सेटल डाउन भी हो जाएंगे। इट इज ए मूव फॉरवर्ड। अगर एक टर्म यूज किया जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस वी आर स्पीकिंग अबाउट, एंड वेदर यू आर स्पीकिंग अबाउट पॉलिटी, स्पीकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, एंड आई See, the point is, जैसे एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया, द सिल्वर फॉक्स ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। तो यानी सिल्वर फॉक्स एक यहाँ पे मेटाफर की तरह है। और जी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, उसको रास्ता दिखाने वाले हैं वांग यी। तो सिल्वर फॉक्स उनके लिए कहा गया। उनका मिशन क्लियर है कि कैसे इंडिया को अपने नजदीक लाया जाए। जापान के साथ भी उन्होंने एंगेजमेंट किया, और चाइना का जो गोल है कि उनका वर्ल्ड व्यू, उनका वर्ल्ड ऑर्डर हर हाल में चलना चाहिए। हमने अपने ग्रुप्स पे पहले भी चर्चा की कि कैसे चाइना इज शोइंग दैट आई एम, यू नो, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ एंड आई एम बीइंग मोर लिबरल टुवर्ड्स इंडिया, बट इट इज नॉट। तो यहाँ पर एक और कीवर्ड क्या है जो हमें आंसर्स में लाना है? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। चाइना का हार्ड पावर स्टेटस, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप देखो, चाइना हैज नॉट गिवन इंडिया एक्सेस टू दोज एरियाज जहां पर इंडिया सदियों से पेट्रोलिंग करता आया था। अब चाइना से पूछ के वहां पर पेट्रोलिंग की, साथ में बता कर जाना पड़ा। और चाइना टस से मस नहीं होने, अगर हिंदी में बोला जाए। कैसे इज द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, कैसे चाइना का एक जो कंट्रोल तिब्बत के ऊपर हुआ, और इंडिया ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के ऊपर चाइना का कंट्रोल माना भी, और एंटी चाइना पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया में ना हो इसकी भी बात की। लेकिन क्या चाइना भी सिक्किम स्टेट के लिए उतनी बात करता है? क्या चाइना पूरी तरह से विजिलेंट रह के अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है? तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। तो ये उनके बारे में है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि मिस्टर वांग इज एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ भी हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है एस जयशंकर सर हैं, उसके बाद अजीत डोभाल हैं। द क्वेश्चन अराइजेज, जो साउथ एशियन ग्रुपिंग्स जो बन रही हैं, जैसे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जैसे सार्क माइनस इंडिया बनाने की बात है उनकी, और मिस्टर वैंग जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉर्डर टॉक्स भी हैं। तो हमें एग्जामिनेशन में की वर्ड्स को लेके आना है, एंड किस तरीके से विन विन सिचुएशन में चीजें आगे बढ़े। लेकिन विन विन का मतलब, जैसे यहाँ पर बात की गई कि चाइना मस्ट विन ट्वाइस, दैट मस्ट विन 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 सिचुएशन। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। या फिर आई यू लूज आई विन,
जो जीरो सम मेंटेलिटी है उसको भी इंडिया ने अ, अभी प्रमोट नहीं किया। इंडिया वांट्स अ म्यूचुअली रिकॉग्नाइजेबल एंड एमिकेबल सिचुएशन, और इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर पावर, इट्स अ ग्रेट डेमोक्रेटिक पावर जो कि चाइना नहीं है। So the moral compass is with India. That's what I would say with regard to this time. R. Sundaravardhanan, जिनको स्टाइलिश मनी भी कहा जाता है, he repairs and refurbishes styluses and turntables at his home workshop in Thiruvananthapuram, keeping the music of past alive. बहुत important, बहुत amazing, यू नो, और हेरिटेज पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कैसे वो काम करते हैं। The antique collectors from different states, they send their devices in for repair. It's a typical old school man who he prefers and trusts India Post for all his dispatches. So old songs and you can hear. तो कैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, रेडियोस, रिकॉर्ड प्लेयर्स, इनको बहुत अच्छा लगता था, स्क्रू ड्राइवर्स, वाइंडिंग वायर्स। तो ये एग्जांपल अगेन, आप जो सोसाइटी की बात करोगे या आप आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की बात करोगे, एंड उन्होंने अपनी सर्विसेज को एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया वेबसाइट के ऊपर, और इंक्वायरीज आने लगी। तो हम भी खुद अपने प्रोग्राम्स को अब एडवर्टीज करने की बात कर रहे हैं, एंड हम भी चाह रहे हैं कि वी मस्ट प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू द डिजर्विंग वंस ऑल ओवर इंडिया। फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिसको विक्रम, विक्रम, if I'm not wrong, जिसको विक्रम नाम दिया गया। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इंडिया विल बी स्टार्टिंग एक्सपोर्टिंग ईवीज टू 100 कंट्रीज। ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, इंडिया प्लानिंग टू इट्स ओन स्पेस स्टेशन, और साथ साथ में जो है इंडिया's contribution will be about 20% as far as no whole global economic scenario is concerned। लेकिन जो यहाँ पर नहीं है, तो क्या जिस तरीके का मानसून, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, जिस तरीके का कमिटमेंट हमें चाहिए, वो कहाँ जाएगा? क्या उसके बिना हम विकसित भारत हो पाएंगे? यहाँ पर सिर्फ हम ये बात करें, एंड स्पेशली यूएस टॉक्स ऑन बट रेड लाइंस एग्जिस्ट। इससे हमें पता लगता है कि एवरीथिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। सिर्फ किसी पर्पसफुल या पर्पसलेस अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है, दैट डजंट मीन थिंग्स आर गोइंग टू बी एंडिंग, इट इज गोइंग टू बी मूविंग ऑन। जैसे 11th राउंड अब हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीका जिसको आप कह सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। मोमेंटम है उसके अंदर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और सीका इज बिल्डिंग ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि पहले निगोशिएट और वर्क किया गया, एंड more areas have been added to SICA, or deeper and comprehensive engagements like goods, services and digital trade and government procurement and rules of origin। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीका में 5 चीजें ये, और प्रीलिम्स के हिसाब से आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, एंड वी गोना रिवाइज द सेम। बिजनेस ऑफ डिजिटल डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इससे में तो आप लिख ही सकते हो, अ, आप कह सकते हो कि भाई सोसाइटी में क्वेश्चन आने की जो बात है बहुत ही, एंड राइटर इज सेइंग कि वो जापान गए 2 हफ्ते की ट्रिप के लिए, और handwritten notes of postal addresses and subway directions, click photos on old digital camera, and made one short call to my parents every evening from the postal line। No Instagram, no nothing। No, that's how in the lady is saying। और आप कह सकते हो कि चीजों को कैसे आप हैंडल करते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स का बिजनेस जो है वो बूम हो रहा है, कि लोग चाहते हैं कि कैसे वो रिलैक्स हों, कैसे फोन और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट करें। More and more people are paying premium to disconnect from app-based bedtime blocks and बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फटीग जो है वो यूनिवर्सल है, सॉल्यूशंस यूनिवर्सल नहीं है। तो क्वेश्चन होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हम आंसर में क्या लिखेंगे। तो वर्ल्ड वाइड स्क्रीन टाइम रिपोर्ट, नेशनल एवरेज आवर्स क्या है, 5 घंटे की कम से कम, और जबकि बड़ी बड़ी सिटीज तो उससे ज्यादा हो गए।
स्क्रीन फटीग, जिसको डिजिटल फटीग या स्क्रीन बर्नआउट भी कहते हैं, मेंटल एग्रेशन हो जाता है बिल्कुल। हम इस तरीके से काम करते हैं कि ऐसा ना हो। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कम्युनिकेशन, डिस्कशन, शेयर योर गोल्स एंड शेयर योर वर्क प्रोग्रेस। और जो प्रीमियम स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट ऐप है वो तो गेनिंग कंट्रोल, दे आर गेनिंग कंट्रोल, क्योंकि वो क्या है, वो आपको रोक देंगे। है ना, रियल पावर जो है वो पेड प्रीसेट्स में है, जो कि एक बार आप पे करते हैं और उसके बाद जो है अ, आप जो है वो डिजिटल एक बैलेंस हो जाता है, वाईफाई एक्सेस भी डेलिबरेटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो लग्जरी रिट्रीट्स हैं जैसे वो भी है, और वेलनेस सेंटर्स में भी ऐसा वो करने की बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये आत्मानंद वेलनेस सेंटर की निखिल कपूर जी बात करते हैं कि हमारे क्लाइंट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आते हैं, टेंजिबल रिजल्ट चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं। और फाउंडर ऑफ ओपल कैनेथ चिल्ड्रन ने ये बात की। तो माइंडफुलनेस आ रही है, लेकिन पैसे दे के आ रही है, यानी 3 रातों के लिए आप 55,000 भी देने को तैयार है ना। पीजीएच ग्रुप, अर्थ ग्रुप जो है वो क्यूरेटेड टेक फ्री वेलनेस देता है अपने रिट्रीट्स में, केरला और गोकर्णा। दिस इज अ डीपली रिक्वायर्ड एक्सरसाइज। एंड पोस्ट पेंडेमिक इसने गेन किया, तो थेरेपी रूम्स आ गए हैं। लेकिन एक स्ट्रेंज है, ये डिजिटल डिटॉक्स हैज बिकम बोथ अ साइकोलॉजिकल नीड एंड स्टेटस सिंबल। आप उसके बारे में पोस्ट करते हो कि आप जो है अब आप डिटॉक्स कर रहे हो, न्यू नाउ पीपल शो ऑफ नॉट यूजिंग them। पहले आप दिखा रहे थे, तो यानी कि क्या है, यानी वही वजह मैंने आपको बोला, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव टू स्टॉप टास्किंग आवर ब्रेन्स टू रिमेंबर। वी रीच फॉर आवर फोन्स नॉट फॉर आवर मेमोरी, वी स्क्रॉल नॉट टू लर्न बट टू कंपेयर। तो हम ऐसा नहीं करते, बल्कि वी आर गोइंग टू वी आर फॉलोइंग एक्चुअली दीज आइडिया। तो रिट्रीट्स, डिटॉक्सेस, मिनिमल फोन्स, ये ये रिजेक्शन नहीं है टेक्नोलॉजी का, बल्कि उसका एक ओवरऑल। तो चाहे फिर 35,000 ऐप है, चाहे वो 3 लाख का 3 नाइट नो वाईफाई लग्जरी रिट्रीट है, या फिर 1500 का एक बेसिक फोन है, people are clearly delaying, they are willing to spend, but not because they want less from life, because they want more of it without constant। तो साइलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमने हमेशा वैल्यू की है। और हम इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जब डीप स्पेस की बात करते हैं, तो मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस इसके पूरे हो जाते हैं। गैलेक्सीज हैं, उसके बाद गगनयान मिशन की बात है, उसके बाद 5 चीजें हमें ही समझनी चाहिए, वो चंद्रयान 3 हो, तो हम इसके लिए भी एक होगा जिसमें हम सारी बातें एक साथ डालें। और तेलंगाना गवर्नमेंट सेंक्शंस यूसी फंड, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो वही बात है कि रिवर फ्रंट तो ठीक है, लेकिन आप उन उन जो आपके जो शहर हैं, जो आपके एक्सटेंडेड अर्बन एरियाज हैं, उनका आप क्या करोगे, जो अभी किसी भी तरीके से डूबने की कगार है। So these are the ideas which we want to discuss with that. Make a note of the whole exercise which you have done, and then only is going to make any sense, and you are going to be getting commanding success in the exam in the coming time. Thank you very much.